Good morning to all the honorable judges and people that are present here. I am Zonella and today I am here to express my views and thoughts on Indian education system. So let's start. Indian education system has long been a subject of both criticism and admiration. While it has produced brilliant minds that have excelled in various fields, there are some underlying issues that cannot be ignored. This speech aims to shed light on the harsh reality of Indian education system. So the very first point is the very first point is the pressure cooker environment. From a young age, Indian students face an immense amount of pressure to excel academically. The intense competition for limited seats in prestigious institutions fuels a cutthroat environment, often sacrifices overall personal development. Students are pushed into a relentless cycle of exam, coaching classes, rote learning, leaving little room for creativity, critical thinking, and practical skill. Second, the outdated curriculum and teaching methods. The curriculum in many Indian schools and colleges often fails to keep pace with the rapidly changing world. It tends to be outdated and disconnected from the realities of job market. Third, uh, uh, third, another harsh reality of Indian education system is glaring inequality in access to quality education. Rural areas and economically disadvantaged communities suffer from a lack of adequate infrastructure and well-trained teachers. Bridging this gap and ensuring equitable access should be a top priority for Indian educational policy makers. It is high time for Indian education system to maintain education system of India. Now, at last, I just want to say I am so grateful that Mud Foundation give others a chance to speak on a big platform and expose their talents, and to me for giving me a chance to expose this ground reality to all the people. Thank you. Which class you're at I'm in class 10th. I just passed class 10th. right now? Yes. This year? Ji. Oh, very good. What's your next goal? In future, Yes, in future. when I grow up, I want to be an IAS officer. Oh, very good. What's your roadmap? My roadmap is that when I pass class 10th, I will be giving prelims of UPSC exam and giving interviews of UPSC exams. And Do you know the process? I am just learning it. Oh, you are So very अभी मुझे एक ही एग्जाम पता है which is prelims and उसके बाद मुझे और एग्जाम्स पता नहीं है बाकी मैं उसके बारे में अभी और लर्न कर रही हूँ और फिर लास्ट में जब यूपीएससी इंटरव्यू होता है तो उसके बाद हम सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें। okay. Very good. Very good. You can. And the medal. The MD and CEO is a presenting medical and certificate to Junaira Khan. Very good, beta. And all the very best for the future. Thank you. That personality. My name is Partha Parveen. I am a student in 19th. Today I wish to talk some few words on self-motivation. You will learn to fight your fears and negative thoughts. Remember how much you have struggled in your life. Don't waste your time because yesterday won't come back. Work hard now. You win some, you lost some. You are a life changer. Show everyone what you can do and see the happiness in your parents' eyes. You can do it, complete your goals and achieve your aims because only you can achieve your goals and your aims. Nobody can do it, but you can do it. No, you are the capable of amazing things. Thank you. घबराने की बात करो बहुत अच्छी करी कि फर्स्ट टाइम था आपने और नेक्स्ट टाइम आप टीचर हो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एजुकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई कंपटीशन नहीं है बेटा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है यहाँ से आपको ये पहला प्लेटफॉर्म है जिससे आपको यहाँ से झिझक निकलेगी और आपको अच्छा आगे लेस करने की और कोशिश करना बेटा आपने बहुत अच्छा किया है बस थोड़ा सा जो है ना आपको फोकस रखना है अपने वर्ड्स पे अपने रिदम पे घबराना नहीं है बिल्कुल भी बहुत अच्छा किया फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा किया लेकिन आगे से ना कोशिश ये करनी है जब भी हम कुछ बोलते हैं ना तो बेटा इंटरेक्शन जरूरी होता है
आप ये सोच के बोलो कि सामने वालों को किसी को कुछ नहीं आता, बस मुझे आता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। वो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, जिसकी वजह से आप घबरा गए, वो भूल गए। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाम क्या है? फाइजा। फाइजा। आप बहुत अच्छा कर सकती हो, लेकिन जो प्रैक्टिस की ना, आप पढ़ के प्रैक्टिस की हो, है ना। आप मोबाइल का कैमरा ऑन करके फ्रंट का, उससे प्रैक्टिस किया करो कभी भी, तो बहुत अच्छा आएगा। एक बार दो बार रिकॉर्डिंग ऑन करके 1-2 मिनट का स्पीच जब उस पर तैयार करोगी तो बहुत अच्छा कर सकती हो। क्योंकि हमें कैमरा फेस करने की शुरू में आदत नहीं होती है, तो इसलिए हम सामने जो है तो डर लगता है। लेकिन जब ऐसे करेंगी तो कैमरा फेस करने की आदत पड़ जाएगी कि वीडियो कैसे बनाते हैं, तो बहुत अच्छा कर सकती हो। थैंक यू। For being father of Riyazuddin by the Makifiza Foundation and the anniversary. Done. Thank you बच्चे. All of you, I am Zanab from 8th standard. Today I am here to share my view on the about of the value of time. As you know, time is so precious in our life. So let's discuss and find more about than time with me. Time. Time has great importance in human life. The person who knows the importance of time in life is constantly moving or towards progress in life. The value of time is more than money. So the time is most valuable in student life. The person who understands the real of time is successful in life. The students and my dear friends, you need to time management to achieve your goals. By using time wisely, we are do everything on time and achieve our goals. So please do time management and achieve your goals with me. So my friends, do your dreams bright and achieve your goals for your parents. Thanks everyone. How you manage the time? In which class you read? Time is scattered. How you manage your time? You can speak in Hindi also. चीजों को टाइम पर करके कोशिश मोबाइल करती हूँ। देखती हैं आप? जी सर, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कभी सा। कभी. हाँ, हाफ एन आवर देखती हूँ। मतलब अगर मुझे स्टडी को लेकर कुछ काम है तो मैं हाफ एन आवर यूज कर लेती हूँ मोबाइल। आप बताया नहीं आपने कैसे देखती है, आप मैनेज कैसे करती है टाइम? सर जैसे कि अगर मुझे किसी किसी चीज का काम है तो मैं उस काम के लिए अपना टाइम मैनेज करती हूँ पहले, कि मुझे अपना टाइम टेबल बनाती हूँ कि आज का मुझे क्या क्या करना है, एंड मैं उसको टाइम पे करती हूँ, अपना कंप्लीट करती हूँ, होमवर्क वगैरह भी। वेरी गुड. बेटे, टाइम मैनेजमेंट में अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देते हो आप? सर मैं ऑलमोस्ट एवरीडे 3 and 4 आवर्स देती हूँ। अभी सही? सर यस, क्योंकि मेरा ड्रीम है ना आईपीएस ऑफिसर बनना, तो अगर मैं अब से तैयारी करूंगी तो आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई मोटिवेशन पर्सनालिटी आपकी जिसे देखकर आप आईपीएस बनना चाहते हो? सर मेरा खुद का ड्रीम है, जैसे कि सब देखती हूँ मैं मोबाइल में कभी कभी। क्या करते हैं आईपीएस ऑफिसर? सर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं पुलिस स्टेशन एंड सर आई डोंट रिमेम्बर सर, आई फॉरगेट इन माय माइंड। ओके, आप नेक्स्ट टाइम करो जो आप बनना चाहते हैं ना बेटे, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। यस सर, यस सर, आई कैन फॉरगेट माय माइंड सर, आई डोंट रिमेम्बर। यस सर, यस सर, यस सर, ध्यान देंगे। अगर आप आईपीएस Okay, sir. बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, Yes, sir. यस सर, उसके वहां तक पहुंचने के लिए उसका रन क्या है? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छा करा आपने। थैंक यू एवरीवन। और बेटा, now थैंक यू सर। let us work on certificate and
The medical. Medical. Certificate of appreciation and medical medal by McAfee, the Met Foundation and McAfee. Good morning everyone, I am Abira and today I am standing here to present one of the most important topic, our environment. So, all the things that are present in our surrounding is environment. It includes everything like air, water, land and the whole of biodiversity. Our environment is our home and we must protect it. Our environment provides us all the essentials that we need in our everyday life. It regulates climate, influences weather, and support the life of plants and animals. However, our environment is facing numerous challenges. Pollution, climate change, global warming, and biodiversity loss are just the few of Okay, can you? Can I start it again? Yes, beta. Proceed. You can start again. However, our environment is facing numerous challenges. Pollution, climate change, global warming and biodiversity loss are just the few of pressing issues that require our attention and action. Human activities are altering the delicate human environment are delicate balance of the environment. Now let's cherish and protect our environment not just for ourselves but for our future generation. Thank you so much. Thank you. You can speak in Hindi also. हम अपने जो गली वगैरह होता है उसमें कूड़ा ना डाल के हम वो कर सकते हैं, हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं. और जैसे अब रेड लाइट होती है तो हम अपने इंजन्स बंद कर दें, जिसकी जब हम नहीं करते तो उससे पोल्यूशन होता है. Where we throw the dust kuras of our home. जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत मतलब ऐसे कंटेनर्स वगैरह लगा रखे हैं. Very good. हम वहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपनी गली वगैरह में ही डालें. Or there is so many problems you highlighted in the speech like that. Yes, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ये सब जो है हमें इन सब चीजों को कम करना चाहिए. How we? जैसे पोल्यूशन को हमें जो है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जो है लोग गंदगी करते हैं और रेड लाइट पे अपने इंजन्स बंद नहीं करते हैं. तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा? हाँ, तो मैं जैसे कि अब मैंने कोई चीज खाई और मैंने उसको गली के नीचे फेंक दिया तो वो गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारे डस्टबिन है, हम उसमें डाल सकते हैं. Very good. Is there any plan for your future? No, not right now. Right now, in which class you do read? अभी मैंने 7th पास करी है, 8th में हूँ. Very good. Which school? जीरत महल. Very good. Thank you. Okay. Now, टीचर हैं जाकर आप इधर presenting medal and certificate by the Met Foundation and the McAfee and the अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समद है और मैं एक नात पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. हाँ मेरा नबी है, वो सोना नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है,
फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उन पर ही नजर, उन पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्सु ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उन पर ही नजर, उन पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वशम्सु ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बेटा बहुत अच्छा आपने इस नात है नज़म है नात नात बहुत अच्छे से आपने उर्फों की अदायगी की और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आप कौन से मदरसे में हो या बेटा पढ़ते हो स्कूल में? मदरसे में कौन से? बिस्मिल्लाह मस्जिद, कहाँ पे? जाफराबाद की साइड। जाफराबाद की साइड में। अच्छा माशाल्लाह बेटे बहुत अच्छे से मेहनत किया आपने और बहुत अच्छा लगा। कुछ टाइम के लिए तो हम खो ही गए कि भाई बहुत, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है बेटा। मेहनत करो इस पे और अच्छे से। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 6th, कौन से स्कूल में? जीनत महल। जीनत महल में हो। अच्छा अभी आए हो 6 में या 6 पास करी है? अभी आया हूँ। अभी आए हो। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा बेटा। और अपनी पढ़ाई पे भी मेहनत करनी है और बेटे दीन पे भी मेहनत करनी है, ठीक है ना? आगे जाना है खूब। बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं और अभी आप बहुत यंग हो, बहुत अच्छा जहन है आपका। पढ़ाई में भी खूब अच्छा कर सकते हो और दीन में भी। और आपकी अम्मी को भी इस बात की मुबारकबाद कि बच्चा जो है अभी से ही इतना अच्छा दीन में आपने लगा रखा है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या है स्कूल के चक्कर में लगा रखा है बच्चों को, उनको दीन की मालूम आती नहीं है। क्योंकि इसके हरूफों की जो अदायगी थी वो बहुत कम अदा कर पाते हैं इस वाली नात में। मैंने बहुत सुना है लेकिन वो कॉपी करते हैं, बस हुरूफ जो है पकड़ नहीं पाते। तो बेटा बहुत अच्छा कि आपने इसको पढ़ा
और मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा यहाँ बेटे बच्चे, जब भी इस तरह की कोई नात या नज़म पढ़ते हैं ना तो उसके बाद ताली नहीं बजाते, हमारे उस्ताद बताया करते थे हमें, है ना बेटा। तो आगे से ध्यान रखेंगे सब, हौसला अफजाई के लिए बस आप कह सकते हैं लेकिन ताली नहीं बजाया करते, ठीक है बेटा। बच्चों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया आपको, लेकिन इसके लिए हर अप्रिशिएशन कम है, क्योंकि आपने जो नात पढ़ी है मतलब ये तो आप सल्लम के मतलब आप सल्लम की खिदमत में पेश की है, तो इसका तो कोई वो काम है ही नहीं कि हम इसके लिए कितनी भी तारीफ करें, वो कम है। दूसरी बात ये है माशाल्लाह से कि आप एक ही वक्त में दोनों तालीम लेके चल रहे हैं, कि आप दुनियावी जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन बोलते हैं और दीनी जिसे हम कुरान और हदीस की तालीम बोलते हैं। तो क्या आप हाफजा कर रहे हैं? अभी हाफजा कर रहे हैं। हाफजे की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि अगर बच्चा हाफजा कर रहा है तो जो बच्चा हाफजा कर लेता है, और देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, लेकिन इंशाल्लाह अगर बच्चा हाफजा कर लेता है तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हाफिज बच्चों को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, और अगर वो बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए वो कोई भी फीस नहीं लेते। जैसे शाहीन एकेडमी एक शाहीन बाग ओखला में है, ये हैदराबाद से ये लोग इसको कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप इसके लिए यहाँ जो भी लोग यहाँ बैठे हैं स्टेज पर, उनसे टच में रहें, तो ये आगे के लिए बच्चा जो है वो अपने रास्ते खुद निकाल लेगा। आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो उन्हीं शाहीन एकेडमी के अंदर आपको 6 से 8 लाख रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर बच्चे ने हाफजा कर लिया है तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरी पढ़ाई, रहना, खाना पीना सब बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाएंगे। तो इस तरह के रास्ते अगर निकलते हैं तो आप जो है वो उसके लिए टच में रहें, और बेटा आप मेहनत करें। और ये हकीकत है कि अल्लाह पाक जो है जो बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके जहन को और ज्यादा मतलब खोल देते हैं, और वो मतलब अल्लाह पाक ने एक आपको वो कुव्वत और ताकत और वो सलाहियत दी है कि आप एक इतनी बड़ी किताब याद कर सकते हैं, तो दुनियावी चीजें क्या है। तो बस आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, अल्लाह पाक आपको हर तरह से कामयाब करे दुनिया और आखिरत में, और आपके वालिदैन को भी अल्लाह पाक जो है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। क्या है बच्चे का नाम? बच्चों का नाम मेरा अब्दुल समद है। आपकी मेहनत नजर आ रही है बच्चे के अंदर, और खासकर ये बात है कि कुछ चीजें होती हैं गॉड गिफ्ट, जो खुदादाद सलाहियत है। इस बच्चे को अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दी है कि बहुत अच्छी आवाज है इसकी, और दोनों बात ये लेके चल रहा है, दीन और दुनिया दोनों में बहुत अच्छी स्टडी चल रही है, और हमें नजर भी आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला अगर थोड़ी सी और मेहनत इसकी रहेगी ना तो आगे चल के ये क़िरात भी बहुत अच्छी करेगा, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है हिंदुस्तान से बाहर भी। और अगर ये बच्चा इसी तरह टैलेंट करा तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, ये ईरान वगैरह से हम इसके लिए सिफारिश करेंगे कि अभी से इसके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि ये और अच्छे जाके करेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके। Everyone, a very lovely good morning to all of you. My name is Safia. I am a student of 9th standard. आज मैं आप सबको शिक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह शिक्षा केवल हमारे कौशल और ज्ञान को नहीं बढ़ाती, हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। शिक्षा हमारे लिए शिक्षा का महत्व है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्य को समझता है और समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। हम सबको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि आज ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षा का अभाव है। हर व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो हम सबको शिक्षित होना आवश्यक है। हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए और शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सब मिलकर शिक्षा को हर घर तक ले जाने का संकल्प लें। धन्यवाद।
एंड ये छोटा सा थॉट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा सफिया, आप कौन सी क्लास से हैं 9th स्टैंडर्ड, और कौन से स्कूल से हैं? CR दास। बहुत अच्छी बात की बेटा आपने शिक्षा के ऊपर, और आपका जो भी बात आपकी बहुत अच्छी लगी। you, अच्छा, sir. और क्या बनना चाहते हैं आप आगे? आई वॉन्ट टू बिकम मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की वर्किंग क्या होती है? वो न्याय करता है सबके साथ, वो किसी के प्रेशर में आके फैसला नहीं लेता, वो हर अपने उससे फैसला लेता है कि मैं न्याय करता हूँ सबके साथ। मजिस्ट्रेट के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? मजिस्ट्रेट के लिए मुझे साइंस साइड चाहिए। चलिए, बेटा आपने शिक्षा की बात करी, शिक्षा को हम कैसे फैला सकते हैं? शिक्षा को हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपने पास से, कैसे? हम उनके एडवांटेज बता सकते हैं, उनको फायदे बता सकते हैं कि शिक्षा से हमारा बच्चा बहुत आगे जा सकता है। हम शिक्षा दे सकते हैं, हम प्रोवाइड करा। आज भी गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली सरकार गवर्नमेंट बच्चों को फ्री वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करवा रही है। तो हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं स्कूल, आगे आगे पहुंचा सकते हैं बहुत। उनको ये बात बताकर जी सभी तो जाएंगे वो, जी। ऐसे ही चले जाएंगे? तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ना सर। हाँ बहुत अच्छा। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बातें हमें बतानी पड़ेंगी उन्हें जी। कि गवर्नमेंट बुक्स प्रोवाइड करती है, Books- ड्रेस प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छे अच्छे काबिल टीचर्स हैं, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये सारी जब हम बात बताएंगे जब भी तो जाएंगे जी। बच्चे। और अपने लेवल पे भी हमें जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनको पढ़ाना है, ताकि वो मोटिवेट हो के यार जब इनको इतना अच्छा आ गया पढ़ना, तो अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमें भी आ जाएगा। जी सर। ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुनकर। थैंक यू। और बेटा जो बनना होता है ना उसके बारे में प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर गाइडेंस, किसी से पूछना कि भाई मुझे ये बनना है तो इसका क्या रास्ता है, तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे, तभी तैयारी होगी। ठीक है ना बेटा? जी क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले हमें उस पर वर्क करना है जी। कि भाई ये कैसे, इसका रास्ता क्या है। ठीक है ना बेटा? सर आप। इस बच्ची ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात बताई, जो इसको बताया गया है शिक्षा के बारे में, खासतौर से इसने उस बात को यहाँ आप लोगों के सामने रखा। और शिक्षा जो है जिसको उर्दू में तालीम कहते हैं, जी। और तालीम का महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत जरूरी होती है। जैसे कि वो कई चीजें ऐसी होती हैं उसके साथ कुछ चीजों को जुड़ना बहुत जरूरी होता है, इसी तरह तालीम के साथ तरबियत है। शिक्षा के साथ संस्कार का होना जरूरी है, तालीम के साथ तरबियत का होना जरूरी है। अगर तरबियत नहीं होगी तो कई बार शिक्षित व्यक्ति भी, मतलब वो अगर जिस न्याय के पद पर हम बैठाते हैं वो पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाता, किसी के दबाव में आ जाता है, किसी से डर जाता है, निष्पक्ष नहीं रहता। लेकिन अगर उसकी तरबियत हो, अच्छी तरबियत हो, शिक्षा के साथ, उसे तालीम के साथ अच्छी तरबियत हो, तो वो अच्छा न्याय भी कर सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। और तालीम का जो असली मकसद है, शिक्षा का जो असली मकसद है कि वो अपने लिए तो करेंगे, अपने आस पड़ोस और पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश और अच्छा माहौल पैदा करने के लिए अपने प्रयास करें। बहुत अच्छा कहा आपने, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या इम्पैक्ट है आप? मोहम्मद तासलीम। बताइए बेटा, क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन से? आपको क्या बेनिफिट दिख रहा है अभी राइट नाउ? एजुकेशन से मुझे ये बेनिफिट दिख रहा है कि हम आगे जाके जितना अभी पढ़ सकते हैं अभी जो आप सड़क चलते हो या घर में, एजुकेशन आप अलग दिखाता है ना, क्वालिटी एजुकेशन की भी वो डिफरेंट मुझे क्वालिटी। एक टैलेंट मिला कि मैं आगे जाके कुछ कर सकती हूँ। मुझे मोटिवेट किया मेरे पेरेंट्स ने, मेरी टीचर्स ने, मेरी ट्यूशन टीचर ने, मेरी मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो। मुझे टैलेंट मेरा बाहर निकाला, मेरे डर जो था, मैं बोल नहीं पाती थी जल्दी से एकदम से, तो मेरे डर को बाहर निकाला कि तुम कर सकती हो। तो थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे सपोर्ट करा। और यू मोस्ट वेलकम बच्चे। नाउ द टर्न फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड द मेडल। This small appreciation for your future development. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, बच्चे. थैंक यू You सर। come थैंक here यू to मैम। promote
yourself. ये कि आपने अपनी बेटी पे इतना कॉन्फिडेंस और इतना यकीन एतमाद है कि आप इसके लिए कर रही हैं, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स की ही हौसला अफजाई जो करते हैं बच्चों के लिए, और पहले माँ बाप भी ख्वाब देखते हैं तो बच्चा आगे जाता है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी सोच है अपने बच्चों के लिए, और इसके बारे में लड़की बहुत अच्छी टैलेंटेड आपकी, और इस पे मेहनत कीजिएगा और इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। मेरे 3 लड़कियां और हैं, 2 लड़कियां और हैं जो नीचे हैं राइटिंग कंपटीशन में, ड्राइंग में। एक तो 12th में है, वो जो इंशा नाज, वो अभी डॉक्टरी करनी चाहती है, इंशा परवीन, और लाइबा, वो भी बहुत अच्छी है। जैसे मैम अभी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, जी तो उसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जो इनका रास्ता है आईएएस बनने का जी वो बहुत इजी नहीं है मैम। जी। तो उसके लिए आपको क्या आपकी प्लानिंग्स है इनके लिए? प्लानिंग तो ये है कि माशाल्लाह से इतना तो मैं इनके साथ दूंगी, हमारे हस्बैंड भी साथ देते हैं इनका, मगर ये खुद भी इतना करती हैं बहुत ही, इनको अभी से इतनी लगान है कि हर चीज के लिए आगे से आगे बढ़ती है। देखो मैम, इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारे टैबूज आएंगे, जी। तो उससे ना आप घबराना और ना ये घबराना। नहीं हाँ। इंशाल्लाह नहीं। क्योंकि बहुत लंबा रास्ता हम कह देते हैं, बहुत आसान। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हाँ, जरूर पूरा बस करेंगे इनका। इसके लिए आपको इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जी ये आपको पता होना चाहिए। जी। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कामयाब करे। आमीन। ये देख के बहुत अच्छा लगा मैम कि आप बच्चों का साथ देती हैं। जैसे मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो लेकिन एक चीज ये कहना चाहूंगी, ये जो भी कोचिंग में जाती हैं, तो आप कोचिंग में जाती हैं? नहीं जाती? कौन सी क्लास में है आप? 9th में है। तो क्या होता है कि बच्चे जैसे 10th करते हैं या 11th में जाते हैं, तो साइंस आर्ट कुछ भी चूज करना पड़ता है स्ट्रीम। जिस भी फील्ड में जाती हैं, तो पहले से आप उसको सर्च कीजिए, काउंसलिंग कराइए कि कौन से सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है आगे बच्चे को जाने के लिए। तो उस पे जब आप फोकस करेंगी तो भटकेंगी नहीं, क्योंकि होता है ना, खास करके कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आपका बच्चा टैलेंटेड है, ये स्कूल वाले तो साइंस ही लेना चाहिए। अब मान लीजिए मुझे जरूरत नहीं, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं? तो उस चीज पर फोकस करना, क्योंकि वहीं पे बच्चों का क्या होता है कि फिर फ्यूचर उनको समझ में नहीं आता, वहां से वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने की वजह से वो कर नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को जो भी फील्ड में जाना है, आगे का देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है, न कि स्ट्रीम। इनकी तो ना साइंस साइड लेने की तमन्ना है और आर्ट्स लेने की, वो बेटी भी कहती है जो इनको बनना है ना, वो इन्हें बनना है, वो अभी नहीं, वो जरूरी है, वही चीज मैं कह रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि घर में जैसे बच्चे साइंस लिए हैं, बड़े बच्चे, ये अपने आसपास में, और कोचिंग का है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उनका परसेंटेज अच्छा आ रहा, तो स्कूल पे भी कोचिंग से या आसपास से एक बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि नहीं आपका बच्चा टैलेंटेड है तो साइंस ले लो। अब मुझे साइंस की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे को उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई और स्ट्रीम से आगे कुछ करना है। नहीं, जो इनको लेना है हाँ, तो उसी पे फोकस कराना, क्योंकि बच्ची ना बहुत अच्छा कर सकती है। अगर मान लीजिए हमें उसकी जरूरत नहीं, तो हम उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरी बड़ी बेटी है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो साइंस साइड लिए। हाँ, बनना चाहती है तो ये भी आर्ट्स लेंगी। हाँ, तो वही चीज कह रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को इसी में। अभी तक कोचिंग भी नहीं जाते, फिर भी फर्स्ट आते हैं माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। इन बच्चों को विंग्स की जरूरत होती है, पंखी। बर्ड्स बर्थ तो ले लेते, पक्षी जो है वो जन्म तो ले लेते, पर उड़ना कौन सिखाता है? उसकी माँ सिखाती है। तो जब तक माँ साथ नहीं है और फादर साथ नहीं है तो नहीं हो सकता वो। नहीं, इनके पापा भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, पढ़ाई में सपोर्ट। हम लोग होप करते हैं अच्छा करेंगे ये आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा। My name is Israr Haman. I am 7th class student and I am sing a song. So let's start. जा रांझड़ 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। जा रांझड़ 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था तेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में झूठा, कैसे भुलाऊं बेरिया। जा रांझड़ रांझड़ रांझड़
तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। अगलावा मजबूरी नू, आण जान दी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नू। आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, धागा तोड़ के डस जावे, कावा क्यों दी चूरी नू। रावा छिपावा च ओनू लुकावा, कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइया दी जदों खबर किवे होवे, आ जावे दिन तेरा तू राजी ना होवे। हाँ बने बनाइया दी जदों बात किवे होवे, आ जावे दिन तेरा तू राजी ना होवे। Kissy face, sending from, but I'm trying to kiss you, it's for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. You can be something I can feel, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is this, meet me at the apache, 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 मासूम मासूम दिल से खेला, खेला है तूने अब ये मासूम ना रहा, रहा ना जाओ जुल्मों का हिसाब लगाओ, नजरों में मेरी ना आओ, ना कोई वास्ता, उलझे रहो खेले ये गुलामी कनीयत तेरी बुरी, ते मैं आके सुनावा तेनू, मेरे सोने 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 आ। मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना बजादू फिरदा नी, मैं भी देखदी हुण बनया बिना तो वो भी देखदा किरदा नी, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। हो मेरी काड़ी एक्टिवा दा एक दिन पड़ के पेंडल फड़ के, पानी पानी होगी मैं फट्टू हाँ कर वो ने अड़के, कहंदा कुर्ती तेरी दे मैनू लटकन पच दे, दूजा लटदा कोबरा किरदा नी, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना बजादू फिरदा नी, मैं भी देखदी हुण बनया बिना तो वो भी देखदा किरदा नी, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। थैंक यू। बेटा आप अकेले कुछ साथ है आपके? जी कौन है? मेरी मामी आई है। बुलाइए मम्मा को अपने। तुम्हें इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है और देखिए लाइन कोई भी बुरी नहीं होती, जिसमें बच्चे का शौक है उसमें करांचा का इसके सिंगिंग में शौक है, तो इसके अभी से इस छोटी उम्र के अंदर भी सुर अच्छे लगा रही है और थोड़ा सा रिदम वगैरह में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगी, थोड़ा सा और रियाज करेगी तो ये बहुत आगे जा सकती है। बाकी जितनी भी सिंगर बनी है बड़ी बड़ी सब छोटी बच्चों ने गाना स्टार्ट करा था और आप बड़े होके कोई लता बनी, कोई आशा बनी, कोई घोषाल बनी, सब छोटी सी टैलेंटेड आती हैं और सबने मेहनत करी। लड़की में अच्छा टैलेंट है तो थोड़ा और इसको रियाज वगैरह कराना पढ़ाई के साथ साथ, तो ये भी बहुत कामयाब हो सकती है। ठीक है ना बेटा? और थोड़ी और मेहनत करना, रियाज पक्का करना और थोड़ी सुर क्या होते हैं, ताल क्या होती है, रिदम क्या होता है, थोड़ी सी उसकी जानकारी भी आप लेंगे, है नहीं? लीजिए बेटा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल। कहाँ पे? शादरा की साइड। स्कूल में प्रोग्राम करते हो आप? हाँ स्टेज पे? वैसे मुझे डांस में भी। वहाँ सिंगिंग में नहीं करते आप? सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया करो अगर आपका इसमें बेटे मन है, क्योंकि देखो जब हम ऑडियंस को फेस करते हैं ना तो पहले स्कूल से शुरुआत होती है वो, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा कंपटीशन वाला फील्ड है। इसमें हर दिन तुम्हें हर पल एक नया मिलेगा सिंगर, ठीक है ना? और जैसा सर ने बताया थोड़ा सा आप उसके ऊपर भी ध्यान दो। और आपने एक साथ मुझे लग रहा है कई सारे गाने मिक्स थे इसमें, है ना? तो आपने इंग्लिश वाला वो रैप भी किया
वो बहुत अच्छा था। उसमें आपने जो है जो लाइन से पढ़ी हैं वो बहुत अच्छी थी, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक था। तो थोड़ा सा आप इस पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत अहम है बेटा। अगर इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए तो पढ़ाई तो कामयाब कर ही देगी ना, है ना। हाँ, और बेटा अच्छे बच्चे वही होते हैं जो साइमल्टेनियसली सारे काम करते हैं। अलग से वक्त तो मिलेगा नहीं कि अभी पढ़ाई के लिए अलग वक्त मिलेगा, इसके लिए अलग, तो वो साथ साथ ही करने हैं सारे काम। आज का दौर भी ऐसा ही है। तो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग जो पेरेंट्स हैं वो भी आप थोड़ा सा इस बच्ची पे शुरू से ही फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन वाला फील्ड है। थैंक यू सर। लीजिए मैम। द मैट एकेडमी इसको प्रमोट करता है, और हाँ, आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं। यहाँ पे सिखाया भी जाती है, सिंगिंग सिखाई जाती है, यहाँ क्लासेस भी दी जाती है मैकेनिकल के। Good morning to all the respective personalities. My name is Ikrinaz. I am in 9th standard. Today I wish to say few words for self motivation. When you believe in yourself, then there is nothing you can't achieve. You are capable of amazing. Like exams are not about the best, but about who can handle the pressure best. You need to fight against your fear. Also, don't compare yourself with others. Don't say that you are ugly. Don't think you are not that cute. Just think you are the best. Now you have to decide, leave your fear or leave your dreams. Thank you. You rate beta? I am in 9th standard. Which school? Zinat Mahal. What is the future plans? I want to be a doctor. Doctor? What's your preference subject? English, science side. How you become a doctor by preferring English? My favorite subject is English, but if I want to become a doctor, I want to You have to work hard. get interest in science. Yes, very good. डॉक्टर की फील्ड बहुत सारी फील्ड, डॉक्टर के अंदर कई सारी चीज आती है। कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए? अभी ये तो डिसाइड करा नहीं है, अभी पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन अभी सोचा है कि कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे हार्ट पेशेंट होते हैं। हाँ। और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है, इतने डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए बड़ी हार्ड वर्किंग चाहिए जी। यहाँ तक इतना पढ़ना पड़ता है कि चश्मा भी लग जाता है। तो इतनी स्टडी करने के लिए तैयार है आप? जी। बेटा बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बातें बताई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो बनना है ना उसके बारे में भी पता है, जी। क्योंकि उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जी। बहुत सारे बच्चे क्या है, सुनी सुनाई बात करते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जी। लेकिन ये आपकी अच्छी बात है कि आपको पता है। और बेटा अभी से ही आप अपनी साइंस में मेहनत शुरू कर दो। 9th में हो ना आप? जी। इसी साल आए हो? जी। हाँ, तो अभी आप जितना इंटरेस्ट अपना साइंस में दिखाओगे ना, बायो ज्यादा पढ़नी पड़ेगी जाहिर है। जी सर। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है आपको अच्छे जी। से, क्योंकि नीट में तो बेटा वो भी आता है ना। जी सर। है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कोई भी सब्जेक्ट कम आंकना है, तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और इंग्लिश पे बेटा बहुत मेहनत करनी है। जी सर। इंग्लिश बोलते टाइम और लिखते टाइम सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। जी सर। ठीक है ना बेटा। SEIS का बड़ा फर्क होता है, बहुत सारे बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, इन की जगह ऑन बोलते हैं, ऑन की जगह इन बोलते हैं। ये सब ना आपको ध्यान रखना है। जी सर। और अभी आपका बहुत यंग माइंड है, तो ये सारी चीजें आप पकड़ भी लोगे। अगर अभी से गलतियां शुरू हो गई ना, फिर पकड़ भी नहीं पाओगे। बोलने में जब हम किसी ऑडियंस को फेस कर रहे होते हैं ना, तो अपना कंफर्ट जोन हम देखते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन क्या है हमारा? हिंदी। जी सर। बहुत पूरे दिन बुलवा लो। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें बेटा हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चों की खासियत होती है वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जी सर। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। Now the turn for the certificate of appreciation. Very good. Thank you. थैंक यू सो मच। You most welcome बच्चे।
हाँ, very good. First of all, Assalamu alaikum. My name is Umra Khalil. Thank you very much to give me the opportunity to introduce myself in front of you. I am in 10th. I recently passed out my 10th and I am just in 11th grade. And today I am here to tell about the importance of education. Education is the system of through which people change their life, and education is very important for us. If I talk about the Dharmendra Pradhan, who is the education minister of India, he is very stern about the education system. And if we talk about a government, if we talk about any state of government, he is very stern about the education system. And I can speak Hindi. और अगर हम ये देखें कि एजुकेशन वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह पर, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ये ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन करने के बाद हमें जॉब करनी है, लेकिन एजुकेशन जो करी जाती है, एज फार एज मी, एजुकेशन जो होती है वो इंसान को इंसान बनाती है। एजुकेशन ये नहीं होती कि आप एजुकेशन करने के बाद जॉब करो। एजुकेशन इंसान को अच्छा बनाती है। इंसान के अंदर अगर तालीम होती है तो उसके अंदर मैनर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एंड मोटिवेशन तो मिलता ही है, पेरेंट्स से ज़्यादातर मिलता ही है, बट एजुकेशन को करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए, और डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, मोटिवेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक्स फॉर हियरिंग मी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अपी हैं जो नीचे हैं, और साइमा मैम है वो। Wanted to appreciate you what you tell, जो आपने कहा कि एजुकेशन मेड अ मैन ह्यूमन, इंसान को इंसान बनाती है। बट वी ऑल आर अ किंगडम फ्रॉम एनिमल, हम सब एनिमल किंगडम से आते हैं। तो एजुकेशन मेक अ एनिमल ह्यूमन, एजुकेशन जो है वो जानवरों को इंसान बनाती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, एंड एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन to win any war. I want to say something. हाँ, yes, you can. We are in kingdom mammalia, I know, but ये जो है ये तालीम की बात। वैसे तो हम बायोलॉजिकली देखें तो हम मैमल्स ही रहेंगे, लेकिन जो दिमाग की बात होती है, जो मैनर्स की बात होती है, वो अलग। I am not correcting your fact, बस I am asking, just asking, right? चलिए। बेटा क्या नाम बताया आपने अपना? उमरा खलील। उमरा खलील। अच्छा, आपने 11th में कौन सी स्ट्रीम ली बेटा? अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, अभी रिसेंटली मैंने 10th पास करी। क्या स्कोर है आपका 10th में? 85%। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं आप? आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर अकाउंटेंट। अच्छा, तो कॉमर्स ही लेनी पड़ेगी बेटा। yes. फिर तो डिसाइड करना ही नहीं है, कॉमर्स ले लो बस फटाफट। दूसरी बात ये कह रहा था बेटा मैं, जैसे आप का जो है ना एक्सेंट बहुत अच्छा है। जब आप बोल रही थी ना भी, इंग्लिश में बोल रही हो चाहे हिंदी में बोल रही हो, वो एक्सेंट बहुत अच्छा है। उस पर थोड़ा सा और काम करोगी ना आप, बहुत अच्छी स्पीकर बन सकती हैं आप। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो आपका मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन, वो बहुत अहम होता है जब हम स्पीच के लिए खड़े होते हैं। चाहे आप लैंग्वेज कोई सी भी हो, वो मैटर नहीं करता। अब जैसे आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा तो आप एकदम अपने कंफर्ट जोन में आई ना, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बायलिंगुअल होना कोई गुनाह थोड़ी है भाई, जहां पर हम अच्छा कर सकते हैं वहां करें। मेन होता है वॉइस, तो इस पे आप थोड़ा सा काम करो। और बेटा अपना गोल जो है ना, उसको बहुत अच्छे से उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो। कंफ्यूजन नहीं क्या मैं भी डिसाइड करूंगी, या डिसाइड तो बेटे पहले होता है, और सोचना भी पहले ही होता है। डिसीजन लेने के बाद सोचना खत्म। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, और लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं कॉमर्स में। ठीक है, मैंने बहुत पढ़ाई है लड़कियां कॉमर्स की, बहुत अच्छा करती हैं, लड़कों से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है लड़के बुरा करते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा करती हैं। तो आप अपने एम सेट कर रखा है तो वो आप अचीव कर लोगे। और बेटा इंग्लिश में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है,
ठीक है ना, हर चीज को बारीकी से देखना। इंग्लिश सब पता खूबसूरत लैंग्वेज है वो, सर, मैंने लेकिन decide इतनी नहीं- बदसूरत हो जाती है वो, जरा सी मिस्टेक से सारा कबाड़ा हो जाता जी पता है ना। तो इसीलिए ना हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं फौरन, कि भाई अब गलत हो रही है तो थोड़ा सा अपना वही वाली मैंने याद नहीं किया था, मैंने अपने पास से हाँ बोला वो ही दिख गया सारा मुझे, का। वो मुझे दिखा जब भी मैंने आपको बोला भी है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो इसको बेटा मेंटेन करके रखना है, और स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो उसमें पार्टिसिपेट करो। हाँ। अपने आप को इनिशिएटिव में दिखाओ कि जी मैं करूंगी, क्योंकि कॉमर्स अगर लोगी तो बेटा उसमें प्रेजेंटेशन है, आजकल अकाउंट्स में भी प्रेजेंटेशन है, बिजनेस में भी, इकोनॉमिक्स में भी, इंग्लिश में भी प्रेजेंटेशन है। तो अपने आप को देखो, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, पहली बात यही सोच के रखनी है, हमें प्लेटफॉर्म अचीव करना है अपने आप को इनिशिएटिव में लाके। ठीक है बेटा। देखिए आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स दी गई, गाइडलाइंस दी गई। मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये लोग बात कर रहे हैं कि अचीव करना है, दैट्स गुड थिंग, लेकिन मेरा जो देखने का नजरिया है कि आपने अचीव कर लिया है। आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे? आपकी क्लास में 30-40 बच्चे होंगे, 70 बच्चे, उनमें से एक अकेली खड़ी हुई है माइक लेकर, इट्स एन अचीवमेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप बोल पा रही हैं, कह पा रही हैं, फेस कर पा रही हैं, इट्स ऑल्सो अचीवमेंट। आप ये पार्ट रखिए कि आपने अचीव क्या करना है, इट्स योर ऑन चॉइस, बट आप ये काउंट कर चलिए क्या क्या अचीव करती आई हैं, तो आपका वहां कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। सो मेरा नजरिया यह है कि आप वो लिस्ट तैयार करें जो आप अचीव कर चुकी हैं, मेहनत उस पर करें जो अचीव करना है। ठीक है, थैंक यू। Now the turn for the setting the medal by MAC Foundation and the MAC IFISA for your tremendous work and speech. Thank you for coming, बच्चे. Thank you, sir. Everyone, my name is Ilma. I study in 7th class from ABM Public School. I sing a nath. Let's go. Let's start. हो करम सरकार अब तो गए बेशुमार, हो करम सरकार अब तो गए बेशुमार। बुला लो अब मुझे शाह बगरोबर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। हो करम सरकार अब तो गए बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जगह के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जगह के ताजदार। हो करम सरकार अब तो हो गए बेशुमार, हो करम सरकार तो हो गए बेशुमार। काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम, काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम। अर्ज करना रोते रोते हो सके तो बार, अर्ज करना रोते रोते हो सके तो बार बार। हो करम सरकार अब तो
हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। मैं अकेला और मसाए जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे अली वकार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे अली वकार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। चूम कर खाके मदीना झूमती फिरती थी। झूम कर खाके मदीना चूमती फिरती थी। याद आती है मदीना की मुझे ले लो नहा। याद आती है मदीने की मुझे ले लो नहार। हो करम सरकार अब तो हो गए वंदे हो गए वंदे शुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए वंदे शुमार। गम ज़दायूं ना हुआ होता उबैदे कादरी। गम ज़दायूं ना हुआ होता उबैदे कादरी। इस बरस भी देखता गर सबसे गुंबद की बहार। इस बरस भी देखता गर सबसे गुंबद की बहार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो गए गम बेशुमार। थैंक यू। वेरी गुड बच्चे। नाउ द टर्न फॉर द सेट। Hello everyone, my name is Ifza Fatima. I am standard of 8th class from ABM Public School. I am singer Kalam. उदास दिल की दुखी कहानी गमों में उलझी है जिंदगानी। फकत तेरी याद मेरे मौला अता करे शजर जां को पानी। ऐ मेरे मौला मैं थक गई हूँ न जाने क्यों दूर तक गई हूँ। ऐ मेरे मौला मैं थक गई हूँ न जाने क्यों दूर तक गई हूँ। मेरी सियाह शब को नूर कर दे मैं तेरी राह से भटक गई हूँ। उदास दिल की दुखी कहानी गमों में उलझी है जिंदगानी। फकत तेरी याद मेरे मौला अता करे शजर जां को पानी। थैंक्स। खुलकर रो भी नहीं पाते जिन बच्चों की माँ नहीं होती। बचपन के उनके दिन होते हैं धीमे, लड़कपन उनका होता है भारी। होते हैं बेहद मजबूत क्योंकि जिंदगी की सख्ती में तपते हैं वो। जिन बच्चों की माँ नहीं होती थक कर सो जाते हैं वे रोज रोज रात को, बिना थपकी बिना लोरियों के ही।
थक कर सो जाते हैं वो रोज रात को बिना थकी बिना लोरियों के ही। काजल, टीका, डोरा, तावीज कोई नहीं करता, हर दूसरे दिन उनकी नजर भी नहीं उतरती। जिन बच्चों की माँ नहीं होती, जिन बच्चों की माँ नहीं होती। थैंक यू। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से प्यारा और नाम क्या होगा। कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से प्यारा और नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। मेरा नाम मोहम्मद अदलान रजा है। मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ तिरंगे के बारे में। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। थैंक यू। मोहम्मद असलान का नाम है और एक नीचे देखना सर डेनियल है, डेनियल मोहम्मद आलिया। दानियल कौन है? दानियल का तथा और वेरी गुड बच्चे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो एक बार की बात है, एक लड़का अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कुछ परवाह नहीं थी। तो एक बार वो एक लड़के से टकरा गया, उसने उससे तू तड़ाक से बात करी और उसे मारा। फिर एक बार वो रात के टाइम मोबाइल में ध्यान देके चल रहा था, उसका पैर फिसला और नाली में गया। वेरी गुड। और कुछ है आपके पास? और कुछ बताओ, थोड़ा दूसरा क्या कुछ तरह के बताओ, कोई एक्टिंग करो। कोई एक्टिंग करके ऐसे करते हैं, एक्टिंग का बीड़ी का मतलब क्या होता है? हंसाना हंसाना होता है। आप खुद नहीं हंस रहे। हंसा होता है साहब। स्टार्ट। और सुनाओ दूसरा। कोई और चुटकुला सुनाओ। अच्छा, मम्मी को परेशान कैसे करते हो? वो बता दो कैसे करते हो मम्मी को परेशान, जब मम्मी आपको पीछे भागती। नहीं नहीं, मुझे तो नैन कटाई बिस्किट ही खानी। आप आगे खड़े हो स्टेज पे, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ। ऐसे हौसला बढ़ता है बच्चे की। ऐसे धीरे धीरे बेटा और प्रैक्टिस करना। दोबारा बुलाएंगे ना, दोबारा बुलाएंगे तब फिर आना है अच्छे से करनी है।